क्लास 12th सब्जेक्ट फिज़िक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला। The relation between focal length, radius of curvature of two surfaces of lens, refractive index of lens is called lens makers formula. In a relation between focal length भी हमें पता है, radius of curvature of two surfaces, refractive index of lens is called lens makers formula. इसके assumption जो है derivation of formula, lens is thin so that distance measured from poles of its surface can be taken as equal to the distance from the optical center. यानी जो ये poles P1 P2 है, poles of this surface x P1y and x P2y, distance measured from poles of its surface is equal to distance from the optical center. That means we have to measure from optical center. Number one. Number two, aperture of the lens is very small. Number three, the object is a point object. The object is a point object on this principal axis. Number four, incident ray, refracted ray makes small angles with p axis, principal axis. हम एक convex lens लेंगे. Suppose this is rear medium, this is denser medium mu1 mu2. हम दो मीडियम लेंगे mu1 mu2, rear and denser medium. Suppose हम एक सरफेस लेंगे x p1y. Object is a point object. Suppose हम एक convex lens लेंगे of material of refractive index in a medium of refractive index mu1. इसका जो P1 और P2 है ये poles of this convex lens है. C1 and C2 ये हमें पता है. C1 center of curvature of this surface x P1y. C2 is center of curvature of this surface x P2y. यानी P1 and P2 be the poles, C1 and C2 be the center of curvature. और हमें पता है R1 यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं R1 and R2. R1 and R2 are radius of curvature. किनके? दो सरफेस के x P1y and x P2y. अब जो ये C है, C is the optical center of the lens. C is the optical. Suppose O is a point object placed on this principal axis of the lens. Suppose OA incident ray है. O is a point object placed on this principal axis of the lens. इसकी ये रियर से डेंसर मीडियम में जाएंगे. ये इमेज, इसकी इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस पर I1 ये बनाएंगे. यानी सपोज O is a point object placed on the p axis of the lens and I1 is the image of the object. I1 is the image of the object. जब ये OA लेंस पर पड़ेंगे इंसिडेंट रे, यहाँ एक हम नॉर्मल डालेंगे. नॉर्मल यानी O is a point object placed on the p axis of the lens and I1 the image of the object. Alpha, beta and gamma the angles formed by object. Alpha the angle made by reflected angle in beta and gamma normal pair. यानी the suppose O is a point object placed on this p axis of the lens and I1 is the image of the object and alpha, beta and gamma the angles formed by the object, image and normal with the p axis. ये तीनों कहाँ पर बने? प्रिंसिपल एक्सिस पर. फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस x P1y यानी ये इंसिडेंट रे एंगल
एंगल क्या हमने लिखा है अल्फ़ा, इमेज पर जो एंगल बना है वो क्या है बीटा, नॉर्मल पर जो एंगल है वो क्या है गामा, यानी 3 एंगल। अब हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे XP1Y, फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस XP1Y। यहाँ हम ट्रायंगल लेंगे, यहाँ एक नॉर्मल हम डालेंगे AN, ए इन ट्रायंगल AOC1, एक ट्रायंगल में लेंगे AOC1, इन ट्रायंगल AOC1 ये जो नॉर्मल रे है यहाँ तो एंगल हमने लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, इसका अपोजिट जो एंगल है यहाँ हमने एंगल लिखा है अपोजिट एंगल्स एंगल और, यानी ये एंगल और है। अब एक्सटर्नल ये एंगल I जो है AOC1, इन ट्रायंगल AOC1 एक्सटर्नल एंगल यानी एंगल I इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स है अल्फा प्लस गामा, यानी इन ट्रायंगल AOCI वी हैव I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, I इज इक्वल टू अल्फा, यानी external angle is equal to sum of two interior angles. Since the angles are small, then I is equal to alpha is equal to tan alpha, gamma is equal to tan gamma, यानी tan alpha किसके बराबर है अल्फा, गामा इज इक्वल टू tan गामा। हम लिख सकते हैं tan अल्फा के बदले अल्फा, गामा के बदले tan गामा। अब हम tan अल्फा लिखेंगे, tan अल्फा किसके बराबर है, हम यहाँ ये छोटी ट्रायंगल लेंगे AON, इन ट्रायंगल AON, AN परपेंडिकुलर है, ON बेस है, OA हाइपोटेन्यूज है। इन ट्रायंगल OAN बाय पाइथागोरस, इन ट्रायंगल OAN tan अल्फा इज इक्वल टू टिल प्रेजेंट ब्यूटी, इसका परपेंडिकुलर जो है AN है, बेस इसकी ON है, यानी हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू AN बटा ON। लेकिन ये जो AN है ये AP1 के बराबर है, क्योंकि P1 N और C वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी PN1 इज इक्वल टू CP1, यानी या ON नियरली इक्वल टू OP1 नियरली इक्वल टू OC, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू AN बटा ON। AN के बदले AN के बदले हम AP1 लिख सकते हैं, और ON के बदले हम OP1 लिख सकते हैं। AP1 ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन OP1 जो है इसके बदले हम OC भी लिख सकते हैं, क्योंकि पोल और ऑप्टिकल सेंटर जो है ये वेरी क्लोज टू ईच अदर, लेकिन असल में हमें मेजर करना है ऑप्टिकल सेंटर से, इसलिए OP1 किसके बराबर है, OC के बराबर है, यानी बिकॉज ON इज नियरली इक्वल टू OP1 नियरली इक्वल टू OC। अब हम tan गामा लेंगे, tan गामा किसके बराबर है, टिल प्रेजेंट ब्यूटी, प्रेजेंट क्या है AN परपेंडिकुलर, ब्यूटी क्या है NC1, लेकिन ये AN जो है ये हम लिख सकते हैं AP1, NC1 क्या लिख सकते हैं P1C1, AP1 ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन P1C1 के बदले हम CC1 लिख सकते हैं, यानी AN नियरली इक्वल टू AP1 या NC1 नियरली इक्वल टू P1C1 इज इक्वल टू CC1। देयरफॉर I के बदले हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर I इज इक्वल टू अल्फा के बदले tan, यानी tan अल्फा के बदले हम क्या लिख सकते हैं AP1 डिवाइड बाय OC, प्लस tan गामा के बदले क्या लिख सकते हैं AP1 डिवाइड बाय CC1। ये मैंने लेंस मेकर्स फार्मूला का पार्ट फर्स्ट मैंने बताया, यानी एक ही सरफेस मैंने लिया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम दूसरा सरफेस लेंगे, फिर उसका सम करेंगे, फिर फार्मूला निकालेंगे। इसकी फार्मूला जो है वो क्या है, μ-1 इंटू 1 डिवाइड बाई R1 माइनस R2, वो हम निकालेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। वो सारा हमने